Hello students, welcome to IMS CUT channel. So we are continuing this with series General Test PYQs, QA 5th session, top 100 MCQs. We finished till question number 35. Let's begin with question number 36. Man can swim along the stream at 3 km per hour. तो पानी के बहाव के साथ अगर मैन स्विम कर रहा है तो 3 km per hour. That means along the stream, जिसको डाउन स्ट्रीम भी बोलते हैं. along the stream, अगर मैन की स्पीड m है, स्ट्रीम की स्पीड s है, तो along the speed m plus s हो जाएगी, which means m plus s is 3. Against the stream, let's say पानी का बहाव इस तरफ है और मैन opposite direction में. Let's say speed of stream is s, speed of man is m. Against the stream बोलते हैं इसको, ठीक है. Against the stream इसको upstream भी बोलते हैं, upstream भी बोलते हैं, downstream को along the stream भी बोलते हैं, ठीक है. सो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, m minus s. अब इस केस में m minus s 2 है. ऑब्वियसली मैन की स्पीड स्ट्रीम से ज्यादा है. अगर मैन की स्पीड स्ट्रीम से ज्यादा नहीं होती तो ये पॉजिटिव स्पीड नहीं होती, नेगेटिव होती. पानी मैन को पीछे दे देता, पुश्ड बैक, ठीक है. सो अगेंस्ट द स्ट्रीम स्पीड इज 2. दोनों को ऐड करेंगे तो s कैंसिल होगा, 2m is equal to 5. Speed of man in still water is 5/2 kilometer per hour. 5/2 kilometer per hour. ठीक है. How long will he take to swim he swims 7 kilometers in still water? Now speed is equal to distance by time, which means time is equal to distance by speed. Distance कितना है 7 और speed of man in still water is 5/2 kilometer per hour. तो ऊपर चलेगा, which means 14/5. Which means 5 2s are 10, 40, 2.8 hours. So it's 2.8 hours. So 2 hours and 0.8 hours. 0.8 hours को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, which is 48 minutes. 2 hours 48 minutes is the correct answer. Clear? Question number 36 का second option is the correct answer. Question number 37. X, Y, Z together can complete a work in 6 days. X, Y, Z together can complete the work in 6 days means 1 day's work of X, Y, Z is 1/6. X as well as Y alone can do the same work in 16 days. So 1 day's work of X is 1/16. 1 day's work of Y is 1/16. ठीक है. In how many days can Z alone complete the work? So 1 day's work of XYZ minus 1 day's work of X minus 1 day's work of Y. 48 LCM, 8 minus 3 minus 3, 8 minus 6, 2/48. This is 1 day's work of Z, which is 1/24. So 1/24th of the work in 1 day, complete work by Z in 24 days. Third option is the correct answer. Clear? Question number 38. What is the ratio of areas of incircle and circumcircle of a square? तो एक स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, उसका एक इनसर्कल बनाते हैं, सेम स्क्वायर का फिर सर्कमसर्कल बनाते हैं, सेम स्क्वायर का फिर सर्कमसर्कल बनाते हैं, ठीक है. अब इस स्क्वायर का साइड देखिए, वेरिएबल भी मान सकते हैं x या s और वैल्यू भी मान सकते हैं, कोई नंबर भी मान सकते हैं. तो इट्स बेटर टू सपोज अ नंबर y, सो बिकॉज एरिया को कंपेयर करना है, रेशियो फाइंड करना है. तो 1 यूनिट भी मान सकता हूं. अगर मैं 1 यूनिट मानूंगा तो इन सर्कल का जो डायमीटर होगा वो साइड हो जाएगा, व्हिच मींस अगर मैं इसको 1 मानता हूं, इसको 1 मानता हूं तो डायमीटर 1 हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 1/2. तो बेटर है फॉर द सेक ऑफ इजी कैलकुलेशन मैं इस स्क्वायर का जो साइड है वो 2 यूनिट मान लेता हूं, सो दैट इस स्क्वायर का रेडियस इस स्क्वायर का जो साइड है 2 यूनिट, इस इन सर्कल का रेडियस 1 यूनिट हो जाएगा. इन सर्कल का रेडियस 1 यूनिट हो जाएगा. तो पाई आर स्क्वायर, विच इज पाई विल बी द एरिया ऑफ द इन सर्कल. अब स्क्वायर तो सेम है, जिसकी साइड है 2. अब जो सर्कम सर्कल है उसका डायमीटर इस स्क्वायर का डायगोनल होगा. स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? इफ दिस इज x, this is x, this will be
x square plus x square का स्क्वायर रूट विच इज रूट 2 into x. तो स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा रूट 2 into साइड विच मीन्स 2 is a side, 2 root 2 will be the diagonal and that will be the diameter of the circumcircle, 2 root 2 by 2, which means root 2 will be the radius of the circumcircle. So root 2 will be the radius of circumcircle, pi root 2 का whole square, which means 2 pi is the area of the circumcircle. So ratio of area of incircle, which is pi, to the ratio of area of circumcircle, which is 2 pi. Pi pi cancel. My answer will be 1:2. Fourth option is the correct answer. अच्छा क्वेश्चन है, एक होमवर्क देता हूं सर, यूट्यूब में भी होमवर्क, हाँ थोड़ा सा एक रिवीजन हो जाएगा बिकॉज ये सिमिलर ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ये क्लासिक क्वेश्चंस हैं. तो आपको रेशियो ऑफ इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल टू सर्कम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है, उसका इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो फाइंड करना है. याद रखो इन चीजों को, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी याद रहते हैं, ये आपका होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 39, द एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स अप टू 100 विल बी. तो कुछ फॉर्मूलेस करते हैं. तो सबसे पहले 1 + 2 + 3 so on till n. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विद 1. ध्यान रहे, स्टार्टिंग विद 1. There is no formula for sum of n natural numbers starting not from 1. जैसे अगर मुझे फाइंड करना है 4 + 5 so on, स्टार्टिंग विद 4 को सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो उसका फॉर्मूला नहीं है. पहले आपको 1 से लेकर n तक फाइंड करना पड़ेगा और 1 से लेकर 3 तक माइनस करना पड़ेगा. सो फॉर्मूला इज सम ऑफ n नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. ये होता है n into n + 1/2. और एवरेज क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे n से, तो एवरेज विल बी n + 1/2. अब ऑड नंबर्स लेते हैं. 1 + 3 + 5 so on 2n - 1. ये ऑड नंबर है. समेशन ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स. ठीक है, ये बनेगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ये फॉर्मूला होता है एपी का, याद रहने चाहिए. n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. सो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म इज 2n - 1. तो ये बन जाएगा 2 2 कैंसिल n². सो सम ऑफ first n odd natural numbers is n² and average of first n odd natural numbers will be just divide n² by n, so you will get n. ध्यान रहिए फॉर्मूलेस इवन वाला भी कर लेते हैं. जब ये फॉर्मूलेस कर रहे हैं तो इवन भी कर लेते हैं. so 2 + 4 + 6 + 8 so on till 2n. so summation of first n even natural numbers, again n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. 2 कॉमन लेंगे तो नीचे से कैंसिल हो जाएगा. n into n + 1. दिस विल बी n into n + 1. और एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, इसको डिवाइड करेंगे n से, तो वो बन जाएगा n + 1. ठीक है, राइट. तो ये फॉर्मूले याद रखो. अब करना क्या है, द एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नेचुरल ऑड नंबर्स अप टू 100. ठीक है, वैसे ये नेचुरल होना चाहिए, एक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें नेचुरल होना चाहिए. एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स अप टू 100 विल बी. तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 + 3 + 5 so on till 99. 100 नंबर्स में से आधे 50 होंगे इवन, 50 होंगे ऑड. तो ऑड नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होता है n. तो 50 नेचुरल नंबर्स हैं ऑड, है ना, तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा 50. दैट इज द करेक्ट आंसर. सीधे डायरेक्ट, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सीधा विद इन अ सेकंड आप फर्स्ट ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ जाओगे. ये क्वेश्चन में नेचुरल होना चाहिए, बट ये एक्चुअल क्वेश्चन मैंने पिक किया तो यही लैंग्वेज थी, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं, बिकॉज ऑप्शंस में भी सब पॉजिटिव नंबर्स ही हैं, तो नेगेटिव नंबर सोचने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना, तो पॉजिटिव ही है, तो जरा वहां पे नहीं सोचना है as far as CUET general test is concerned. Question number 40, if 1/5 is to 1/x is equal to 1/x is to 1/1.25, then the value of x will be. So if let's say a is to b is equal to c is to d. देखिए a/b is equal to c/d, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AD will be equal to BC. That means product of extremes is equal to product of means. ये होता है कॉन्सेप्ट. So product of extremes, which means 1/5 into 1/1.25 is equal to product of means 1/x into 1/x. ये फॉर्मूला लग गया.
अब 1.25 को मैं ये डेसिमल में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ. 1.25 होता है 5/4. 1.25 because 0.25 is 1/4. 0.25 is 1/4. This is 5/4. तो 5/4 है 1/5. 5/4 है तो 5 नीचे 4 ऊपर 1/x². और x² will be equal to क्रॉस मल्टीप्लाई 5 5 25/4 और x will be equal to 25/4 का स्क्वायर रूट विच इज 5/2. पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑप्शन में पॉजिटिव है. सो 5/2 मींस 2.5. सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर 2.5. ठीक है, क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 40 तक कवर कर लिया हमने. 60 और क्वेश्चंस टू गो. वी विल फिनिश बिफोर 15 को तो टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, डेट शीट आई गई है. ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो कीप ऑन प्रिपेयरिंग बच्चों. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.